Okay, so we'll start with modulus in today's session. Now, basically modulus is a function whose definition is something like this, or representation is like this dabba. Mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0. Mod x is equal to minus x if x is less than 0. ये इसकी डेफिनेशन है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए मॉड्यूलस का बेसिक एसेंस क्या है. एसेंस ये है कि एक डब्बा है जिसके जो बाहर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है. तो अगर मान लेते हैं डब्बे के अंदर मैंने 3 रखा, इज 3 ग्रेटर देन 0? यस. तो जब ये डब्बा हटाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना, यूं का यूं लिख देने का. समझ में आ रहा है? अच्छा, इज -3 इज ये पूरा क्वांटिटी x है, मतलब जो ये येलो वाली वैल्यू नजर आ रही है, दिस क्वांटिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय x. दिस इज x. तो क्या ये जो x है ये लेस देन 0 है? इसका मतलब है जब ये डब्बा खोलेंगे तो मुझे इसके आगे क्या लगाना है? माइनस. माइनस ऑफ अंदर क्या लिखूं मैं? x. x क्या है? -3. तो रिजल्ट क्या बन गया मेरा? +3. तो whenever you take a box, when you open the box, you have to first consider what is inside the box. If the value inside the box is a positive value, then you simply remove the box without any impact, no problems. But if the value inside the box is a negative quantity, then when you remove the box, you have to put a minus sign before that. That is the basic essence and definition of a modulus function. For example, we need to solve mod of x minus 7 is equal to 10, say for example. Mod of x minus 7 is equal to 10. Now, what does this basically mean? Now, we don't know what is the value inside. It could be a positive value, it could be a negative value. So for case 1, let us assume that inside value is a positive value. That means x minus 7 is greater than or equal to 0. If that is the case, then when you open this dabba, there is no change, because in this case, we are assuming that x minus 7 is greater than or equal to 0. So according to the concept, when you are opening this, there has to be no change. So this value is equal to 10 or x is equal to 17. So according to the condition, x minus 7 has to be greater than 0 or x has to be greater than or equal to 7. So if my condition says x has to be greater than or equal to 7 and I'm getting an answer as x is equal to 17. Is it a valid answer? Yes, it is a valid answer. Now, but that is not only the case, because in this function, we don't know whether this value is greater than 0 or less than 0. So second case, I assume that x minus 7 is less than 0. If I assume x minus 7 is less than 0 and I am given this dabba as 10, so when I open this box, so I need to put a minus sign. I need to put a minus sign before this, right? So I put a minus sign here and I open this box. I get x minus 7 and this is equal to 0. So when I solve this value, I get minus 7 plus 7 is equal to 10. And I say minus x is equal to 3 or x is equal to -3. So according to this value, my solution has to be x is equal to -3. But what is my condition? My condition is x has to be less than 7. So my condition is x has to be less than 7 and I'm getting an answer which is -3, which is certainly satisfying my condition. So my answer is x is equal to -3 or x is equal to 7. So I'm getting these two answers. Why do I get these two answers? Because I have two conditions. Whenever you open mod, you get two conditions. Now, this is the basic essence and the logic behind this idea. However, sometimes you are taught to simplify this concept in the sense you are asked to solve like this. Mod of x minus 7 is equal to 10. तो बोलते हैं जब डब्बा हटाओगे तो इसको एक बार +10 ले लो और एक बार -10 ले लो, यही बोलते हैं. तो ये +10 लेने और -10 लेने का क्या मतलब है? ये मतलब है +10 तब लिया जब आपने केस 1 एज्यूम कर लिया कि x minus 7 जो है वो 0 से x minus 7 जो है 0 से बड़ा है, उसके बराबर है. दैट मींस x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया? हमने एज्यूम कर लिया
कि x minus 7 is less than 0, then you are taking this. That is what basically it is being done when you are asked to take plus minus. But why I'm telling you all these cases is because there will be a condition, there will be questions in the exam whereby if you don't assume these conditions, you will get a contradictory answer. That means you may have assumed that x is greater than 7, but your answer is coming x is equal to 3, then you will have to discard that answer because according to the condition x has to be greater than or equal to 7. ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? Now, where will this happen and how this may happen? I'll just give you a sample example. How do we really solve this question? Let us say, I say mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x plus 4, for example, is equal to 17. I don't know how this question will work out, but I'm just kind of framing a question where we may end up having this kind of trouble. Now, the problem here is I need to take multiple cases, as in for all practical purposes what has been taught नॉर्मली कि जब ब्रैकेट खोलो तो एक बार प्लस लगाओ एक बार माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे क्या था x माइनस 7 मॉड इज इक्वल टू 10, तो या तो आप प्लस माइनस 10 यहाँ लगाओ या फिर आप प्लस माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 10 यहाँ लगाओ, बात तो बराबर ही है. Now for all practical purposes, if I were to open this value, I would have to take plus minus case here, I would have to take plus minus case here, I would have to take plus minus case here, and then I would have to solve this equation. That means there will be multiple possibilities. ये positive, ये positive, ये positive, ये negative, ये negative, ये negative, ये positive, ये positive, ये negative, ये positive, ये negative, ये positive, ये negative, ये positive, ये positive. How many conditions? 8. There will be how many equations? 8 different equations, because I will end up getting plus 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 one equation, plus minus plus plus minus one equation, plus minus plus one equation, minus plus plus one equation. समझ में आ रहा है? Then you'll have 1 positive, 2 negative, all possible combination. Then you'll have all negative, all possible combination. No, this is the question. That's all. End of the story. Nothing. हाँ, एक्चुअली तो तुम्हें 8 बार इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, बट दैट इज नॉट व्हाट यू डू इन द एग्जाम. दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. नहीं नहीं नहीं, चलो ऑप्शन तो एनीवे नहीं, शॉर्टकट मेथड है जो ही. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट. यू सी, we need to understand we cannot really solve 8 equations and figure out an answer. So what we are really looking at is, let us say I have a number line. I try to figure out my critical points once again. My critical point happens to be -4. When this will become 0, I will have a critical point of 2 and I will have a critical point of 3. यही critical points बनेंगे. That means I am having 3 critical points that will divide my entire number line into 4 parts. So this equation, instead of now solving 8 different equations, I can reduce in solving of 4 equations. So what are those 4 conditions? If my value is less than 4, if my value is less than -4, sorry, if my value is less than -4, if my value is less than -4, इसका मतलब जो x है वो -4 से कम है, तो इस डब्बे के अंदर कैसी वैल्यू आएगी? अगर मैं -4 से कम यानी -5 डाल दूं तो ओवरऑल कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव. सो व्हेन आई ओपन दिस डब्बा आई नीड टू पुट अ माइनस साइन. व्हाई? बिकॉज डब्बे के अंदर वाली वैल्यू क्या है? नेगेटिव. डब्बे की कंडीशन क्या है? एज ए फंक्शन जब वो डब्बा हटाएंगे तो उसके आगे मुझे क्या साइन लगाना है? माइनस. क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे पता है डब्बे के अंदर वाला सामान जो है वो नेगेटिव है और बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव बनाना पड़ता है. पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव के आगे मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा. ओके. अगर एक्स की वैल्यू -4 है तो ये फंक्शन कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा. ये भी इसके आगे भी माइनस लगाना पड़ेगा. ये कैसा बनेगा? ये भी नेगेटिव बनेगा. लेस देन मान लो ले रहे हैं हम, लेस देन -4. हमने मान लिया
कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो -4 से कम है। मैंने क्या माना, x को क्या माना, मेरी वैल्यू -4 से कम है। तो अगर हम x की वैल्यू यहां डालेंगे जो कि -4 से कम है, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब ये डब्बा, अभी तो डब्बा है, जब ये डब्बा हटाएंगे तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि x-2 की वैल्यू नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इस जोन की बात कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और इसकी वैल्यू -5 डालोगे तो -1 हो जाएगा। सिर्फ -4 के ऊपर। हाँ, क्योंकि ये मैंने फिलहाल 4 केस कंसिडर करने हैं। अभी मैंने वो केस कंसिडर किया कि माई एक्स इज लेस देन -4। आई एम कंसिडरिंग है, अभी लेंगे ना 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया। हाँ, उसी को सिंप्लीफाई करने का जुगाड़ बिठा रहा हूं ना, वही तो कर रहा हूं, और कैसे। देखो बेसिकली क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जब हम डब्बा खोलेंगे तो उसके आगे प्लस लगाना है या नहीं लगाना है, या तो प्लस लगाना है माइनस लगाना है, कंफर्म है। अब सारे 8 केसेस का मतलब ये है कि अब हमें पता ही नहीं है x-2 के आगे माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, इसलिए मैंने दोनों लगा दिया। वैसे ही x-3 का मुझे पता नहीं है प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, इसलिए मैंने दोनों लगा दिया। और उसी तरीके से x+4 मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव, इसलिए मैंने दोनों लगा लिया। तो अगर मैं, मेरे को एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो ये सारे केस बनाने पड़ेंगे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो जो फंक्शन है वो चेंज होएगा इन्हीं चारों पॉइंट, तीनों पॉइंट्स पे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो चेंज होता है इस पॉइंट पे। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं। मेरा आंसर जो होगा वो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो आएगा, आसमान में तो इसी नंबर लाइन पे आएगा। अब जो आंसर आएगा या तो -4 से कम आएगा x की वैल्यू, या तो -4 से 2 के बीच में आएगी आंसर मेरा, या तो मेरा आंसर 2 से 3 के बीच में आएगा, और या तो मेरा आंसर 3 से ऊपर आएगा। और तो कुछ हो नहीं सकता जीवन में। अगर रियल नंबर है, मेरा x का जो आंसर है वो या तो -4 से कम होगा, या -4 से 2 के बीच में होगा, और या 2 से 3 के बीच में होगा, या 3 से इंफिनिटी होगा। और तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ये चारों बातें मान लेता हूं। एक बार मैं ये मान रहा हूं कि जो मेरा आंसर आएगा वो -4 से कम आएगा, मैं मान रहा हूं, मुझे पता नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये मान लिया कि मेरा x की वैल्यू -4 से कम है, मैंने मान लिया मेरी वैल्यू -4 से कम है, तो उस केस में चूंकि मैंने मान ही लिया -4 से कम है, तो ये जो अंदर वाली ये वैल्यू है x-2 की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जब मैं डब्बा हटाऊंगा तो इसके आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये जो 2 केसेस है प्लस माइनस वाले, मैंने सिंगल माइनस, मुझे पता है कि माइनस ही लगाना है। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी, और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। क्यों? समझ में आ रहा है? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। -x+2 -x+3 -x-4 इज इक्वल टू 17। तो -3x ये बन जाएगा 5 -4, एक एक वहां चला जाएगा, बनेगा 16। x की वैल्यू बन गई -16/3। तो x की वैल्यू बन गई -5.33, 5.33 है ना, 15 एक बट, तो बनेगा -5.33। मेरा एजम्पशन क्या था, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, -4 से कम। क्या मेरी वैल्यू -4 से कम आई? इसका मतलब ये मेरा एक आंसर है। इसका मतलब x की वैल्यू जब आप इसके अंदर पुट करोगे सारे डब्बों में, तो आपको 17 मिल जाएगा राइट साइड में। इसका ये मतलब, ये सॉल्यूशन है इसका। चाहे तो अब डाल के देख लो इसको। -16/3 -2, -16/3 -2, सॉल्व किया ना। मैंने -4 से कम माना, कुछ भी हो सकता है ना -4। हाँ
है, चेक कर लें, लेकिन हमने तो फिजिकली कैलकुलेट करके निकाला है कि एग्जैक्टली क्या x की वैल्यू जब -16/3 लेंगे तो इसका आंसर 17 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू अभी हमने ये मानी, अब हम x की वैल्यू मानते हैं -4 से 2 के बीच में, लेट्स से -4 से -4 भी इंक्लूड कर लेते हैं और 2 भी इंक्लूड कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आऊं? Just give me a second.
हाँ जी, पुट करके देखा आ रहा आंसर या नहीं आ रहा है? क्या था हो गए? हाँ जी, किसी ने चेक किया? ये डाल के देखा 17 आ रहा है? वो तो आएगा, सोच रहे हो कि बोल तो देते ही है। एनीवे, यहां तक क्लियर है। नाउ अगर हमारी वैल्यू -4 से 2 के बीच में है, -4 इंक्लूड कर लेते हैं, 2 को एक्सक्लूड कर लेते हैं ताकि अब ठीक है ताकि मेरे को ये एक बार नेगेटिव ले लूं मैं इसको, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन अभी हम लेस ले रहे हैं, 2 से कम वाला एरिया चल रहा है, इसलिए यहां -4 भी छोड़ दिया था, लेस देन 4 लिया था, 4 इंक्लूड नहीं किया था, अगले में करेंगे। तो अगर x -4 से 2 के बीच की बात करें तो ये वाली वैल्यू हमेशा अभी भी नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि जब 2 आएगा तब ये 0 होगा, यानी इस जब हमारी वैल्यू -4 से 2 होगा तो ये वाला फंक्शन क्या होगा? नेगेटिव। ये वाला फंक्शन क्या होगा? ये भी नेगेटिव ही होगा। ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि या तो ठीक है -4 पे 0 हो जाएगा है, हाँ तो -4 पे 0 हो जाएगा, तो 0 पे भी तो पॉजिटिव ही डब्बा रखते हैं, यानी अगले वाले केस में मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? दिस इज इक्वल टू 17, यानी मेरा एजम्पशन ये है कि मेरे x की जो वैल्यू है -4 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और मेरी इक्वेशन ये बन रही है। सो माय इक्वेशन इज -x + 2 -x + 3 + x + 4 इज इक्वल टू 17, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। आई हैव -x 5 + 4 9, और यहां पे 9 माइनस कर देंगे तो बनेगा 8। x की वैल्यू क्या आ गई? -8 आ गई। नाउ x की वैल्यू आ गई मेरी -8। ओके, कैन x बी -8 फॉर अस? x की वैल्यू क्या आई हमारी? -8, बट क्या x -8 हो सकता है? क्योंकि -8 तो हो नहीं सकता, हमने एज्यूम क्या किया x की वैल्यू -4 से 2, और हमारा क्या आंसर आ गया? -8। इसका मतलब है दिस इज नॉट माई आंसर, इसका मतलब दिस इज नॉट माई आंसर। थर्ड केस क्या बनेगा? थर्ड केस बनेगा 2 से लेके इंक्लूड कर लेते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं, ठीक। अब 2 भी तो लेना पड़ेगा, जब 2 लेंगे ये तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, +x - 2। इसको क्या लेना पड़ेगा? 2 से 3 इंक्लूड नहीं है तो नेगेटिव आएगा, -(x - 3). ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव ही आएगा, x + 4। इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए? 17। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा x - 2 -x + 3 + x + 4 इज इक्वल टू 17।
प्लस एक्स माइनस एक्स गया, -2 +1 +4 5, 1 मिनट, हाँ ठीक है, -2 है, +1 आ जाएगा, यही बात है ना। हाँ तो 7 - 2 5, 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 12, एक्स की वैल्यू आ गई 12, बट हमने क्या माना था एक्स की वैल्यू 2 से 3, तो क्या ये मेरा आंसर होगा? ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू -4 से -∞ थी, और वो -4 से -∞ के बीच में आ रहा है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो खत्म हो गया था। ना ना इसमें कुछ नहीं, इसमें रेंज बनेगी। हमने केस लिया ना, मान लिया हमने, एक बार मान लिया एक्स मेरा यहाँ है, एक बार मान लिया एक्स यहाँ है, एक बार मान लिया एक्स यहाँ है, एक बार मान लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस हमने एक्स क्या एज्यूम किया था, <4 -4, हमने एज्यूम किया था <-4, और मेरा आंसर भी आ गया <-4। नहीं नहीं नहीं, 8 कब आया मेरा आंसर? जब मैंने एज्यूम किया था मेरी वैल्यू -4 और 2 के बीच में, मेरा आंसर मैंने एज्यूम किया -4 और 2 के बीच में, और मेरा आंसर कितना आया? तो इसके बीच में नहीं आया, तो मेरे को गलत मानना पड़ा। फिर मैंने आंसर एज्यूम किया 2 to 3 के बीच में, वो नहीं है। अब फोर्थ केस मेरा बनेगा 3 इंक्लूडिंग, अब जब 3 इंक्लूड करेंगे ये पॉजिटिव होगा, प्लस ये भी पॉजिटिव होगा, (3x - 1 = 17, x = 18/3, 6। हमारी वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए थी और मेरी आ गई 6, एक्सेप्ट। तो मेरे दो आंसर एक्सेप्टेबल हैं, 6 एंड -16/3। सो मेरे ये आंसर है और ये आंसर है। तो ये चार इक्वालिटी सॉल्व कर लिए हमने, ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज सो कॉल्ड मोर टफ वाला। कहीं से नहीं, अगर मैं यहां से करता 3 से इंफिनिटी, तो 3 इंक्लूड करके इंफिनिटी ले लेता। मान लो मैं यहां से करता तो मैं 3 से इंफिनिटी यानी 3 इंक्लूड करके बढ़ा, फिर चूंकि 3 इंक्लूड कर चुका हूं तो 2 इंक्लूड करके 3 तक, ठीक है। अगले में फिर मैं 2 ले चुका हूं तो -4 इंक्लूड करके 2 छोड़ देता, फिर -4 से -4 तक, बस। अब इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था। यहां लो, यहां > 17 होता तो भी यही काम करने पड़ते, सारे के सारे एग्जैक्टली यही काम करने पड़ते, ठीक है। पर आंसर थोड़ा सा बदल जाता क्योंकि रेंज आ जाती है आंसर की। अभी तो स्पेसिफिक वैल्यू आई है क्योंकि =2 है। अगर <17 होता तो क्या क्या चेंजेस आते, ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास है <17। फिर मुझे 4 केसेस बनाने पड़ते, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आता <17, यहाँ मेरे पास आता <17, यहाँ मेरे पास आता <16। अब मैं माइनस मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ, समझ में आ रहा है? इनइक्वालिटी बदल जाती, समझ में आ रहा है? -3x, देखो -3x इज > 16, व्हाट कैन आई से? माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x इज < -16 और x इज < -16/3। समझ में आ रहा है? तो क्या ये मेरा वैलिड आंसर होता? तो मेरा आंसर बनता, इस केस में मेरा आंसर बनता -∞ से -16/3। चूंकि =, है, एक आंसर ये बनता। समझ में आ रहा है? हमने मानी वैल्यू -4 से कम और मेरा आंसर आया यहां से, ये 5.56 आएगा ना, यहां से आंसर आएगा, ये वाला एरिया में मेरा आंसर
नहीं सेटिस्फाई करेगा, ध्यान रखना। ये कैट का ही है बेटा, हाँ वहीं से उठाया हुआ है, ताकि मैं सोचा एक समझा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये टफर साइड में, नहीं तो कहोगे आसान आसान करा दिया और वो हमसे हुआ नहीं सॉल्व, तो मैंने वही उठा लिया। ठीक है, केस 1। केस 2 पिंक ब्लू ले लेता हूं, चलो। केस 2 में हम -4 से -2 मानते, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 बनता। वंस अगेन यहाँ पे बनता, ये बनता -8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बनता, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू -8 बनता, यही बात है। अच्छा, x इज लेस देन और इक्वल टू -8, और हमने तो आंसर माना था -4 से -2 के बीच में, और मेरा आंसर आया x इज लेस देन -8, तो ये मेरा आंसर रूल्ड आउट हो जाता। आ रही बात समझ में? ओके। फिर हम केस 3 लेते हैं। केस 3 लेने के लिए मैं पेंसिल ले लेता हूं, चलो। केस 3 का मतलब है मेरा पॉइंट है 2 से 3 इक्वल टू में था ना। अगर ग्रेटर देन होता, मान लो, मान लेते हैं क्वेश्चन होता, तो ये ग्रेटर देन होता, तो ये सब ग्रेटर देन होता, तो -6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 आता, 8 आता। अब इक्वालिटी में तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इनइक्वालिटी में, अभी तो समझाया था ना थोड़ी देर पहले, कि जब माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यार, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। हमने एज्यूम -4 से 2 के बीच में किया, मतलब हमने क्या माना कि x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हमने डब्बे खोले थे, और फिर डब्बे सही खोले और फिर आंसर आ गया -8। इसका मतलब है जो मेरा एजम्पशन था कि इसके बीच में आना चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब दैट इज नॉट एन आंसर। अब तीसरा मान लो हम अब इनइक्वालिटी में ये सारा काम ऐसे ही करते, यहां पे क्या आता, यहां पे आता ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, और यहां आता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, 12 सॉरी, आता x। और मैंने क्या माना, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, और मेरा आ गया x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। फिर मैं फोर्थ केस लेता, फोर्थ केस में मैं ये ले लेता हूं, यहां पे बनता ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, तो यहां पे बनता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी मैंने माना x की वैल्यू इस 3 से बड़ी होनी चाहिए, और मेरा आंसर आया कि x की वैल्यू 6 के बराबर या 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये मेरा वैलिड आंसर है। तो ये मेरा आंसर, तो मेरा आंसर क्या बनता, अगर ये क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर बनता -∞ से -16/3 यूनियन 6 से इंफिनिटी। क्या हुआ अनिल, क्या कह रहे हैं?
वो तो कह रहा है कि हमसे ये मिनट की लगा रखे हैं, लगा रखे हैं, तो बोलेंगे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसको तो फिर बाद में बुलाना पड़ेगा जब बनाऊंगा। मतलब कोई नहीं, इसको खोद लेते हैं, अपन खोद लेते हैं एक बार, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। लगाया था उसने तो कहा यहाँ से ठीक है, पीछे पानी आ रहा है, एक बार रस्सी वगैरह क्या है, रस्सी वगैरह भी पता है मुझे बारिश तो रुक रही है, लेकिन पानी आ रहा है, एक बार हुआ मुझे आप मैं रात में थोड़ा थोड़ा सा खोद रहा हूँ, ठीक है चलेगा कर ले क्या सकता है। हाँ जी, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी समझ में आई? ठीक है, ये थोड़ा सा वो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस थे, जो थोड़े से आसान से क्वेश्चन होते हैं, मान लेते हैं मैंने कहा मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, इसको कैसे सॉल्व करोगे? मान लो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो ये पॉजिटिव खुलेगा। x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। हमारा था -3 से बड़ा 9 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड केस, x प्लस 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन -3, तो इसका मतलब इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ x प्लस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू -12, x हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू -15, हमारा था लेस देन -3, आ रहा है -15, तो मेरा आंसर आ गया 9 से बड़ा है इंक्लूडिंग 9 और -15 से छोटा है ये, तो मेरा आंसर आ गया -∞ टू -15 यूनियन 9 से इंफिनिटी, दैट इज ओपन ब्रैकेट, दैट इज आंसर। भाई दो केस लेने ना, एक बार डब्बा पॉजिटिव कब होगा, जब अंदर डब्बे के अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो डब्बा हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर अंदर वाली वैल्यू 0 से कम होगी तो डब्बा हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो जब मैंने एज्यूम किया कि x प्लस 12 की वैल्यू 0 से कम है, तो मैंने जब डब्बा हटाया तो इसके आगे मैंने माइनस लगाया। है तीन फुट नीचे गहरी है, तो फॉल्ट उसका है तो
Sir, please unmute yourself. सर आपका माइक म्यूट है. हाँ मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -12. यस सर. इसका क्या मतलब है? समथिंग क्या है? एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से देखो, क्या मॉड की वैल्यू 0 से कम हो सकती है? अच्छा बताइए किसका मॉड 0 से कम होएगा? जो डब्बे का रिजल्ट है वो 0 या 0 से बड़ा होगा? समझ में आ रहा है? तो जब वो हमेशा कुछ ही डाल दो, 0 से ज्यादा आएगा तो -12 से तो बड़ा होगा ही होगा. सॉल्व क्या कर रहे हो इसमें, मेरे को ये तो समझा दो. अच्छा समझ आ रहा है क्या कहना चल? जो डब्बा है, मॉड है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव. कुछ भी करोगे x को, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी. ये हमेशा ही -12 से तो हमेशा ही बड़ा होगा, तो कुछ भी डाल दो उसमें क्या फर्क पड़ता है? -∞ प्लस इन्फिनिटी, आंसर हो गया, काम खत्म हुआ. चलो इनइक्वालिटी में ये तो चलो, इसको ये तो नहीं आया, ये निकाल दोगे या इसमें भी तकलीफ है? हैं? यही आएगा. अभी अभी बोला है 0 या पॉजिटिव आएगा. 0 या पॉजिटिव कभी भी -12 से कम हो सकता है? ऐसा कुछ ही नहीं है एक्सरसाइज का, तो ये तो नल आंसर है, नल सेट 0 5 कुछ नहीं आएगा ऐसे, नो पॉसिबल वैल्यू. ऐसी कोई एक्स हो सकता है जिसकी वजह से वो -12 से छोटा हो जाए? अरे जब डब्बा है या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो -12 से छोटा थोड़ी ना हो जाएगा वो किसी भी हालत में. तो आंसर इज नल सेट. समझ में आ रहा है? सॉल्व नहीं करना, इसको दिमाग लगाना है. समझ में आ रही बात? इस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हो. मॉड ऑफ x प्लस 3 इज लेस देन 12. सर x की वैल्यू 0 से लेके 8 तक. इसमें हाँ, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये होता है, x प्लस 3 है ना, लेस देन, ये लेस देन और इक्वल टू 12, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू -12. बस 3 नहीं चाहिए तो -3 यहाँ करो, -3 यहाँ करो, -3 यहाँ करो, तो ये बनेगा -15 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 8. इसका मतलब x लाइज बिटवीन -15 टू 8. दैट इज द आंसर. क्वेश्चन सॉल्व. नाइन आएगा, सॉरी. तो जब भी लेस हो ना, लेस वाले के केस में डायरेक्ट लगा लो. x प्लस 3 का मॉड 12. आप क्या करो, बॉक्स हटाओगे ना, यहां 12 है ना, तो जो भी वैल्यू यहां उसके आगे -12 लगा देना बस. ठीक है, -12. अब अपने को क्या चाहिए? x चाहिए. x चाहिए तो इसका मतलब क्या है, यहां पे -3 कर देंगे तो काम चल जाए. अगर इधर -3 करेंगे तो इधर भी -3 करना पड़ेगा, तो इधर भी -3 करना पड़ेगा.
तो ये बनेगा -15 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 9, ये आंसर है। x लाइज बिटवीन -15 एंड 9। ऑब्वियसली अगर ग्रेटर देन का आंसर ये है, ग्रेटर देन का आंसर क्या था, -15 से 9 के अलावा। अगर ग्रेटर देन का आंसर ये है तो कम का आंसर यही होगा ना, इसके बीच का ही तो होगा, वही तो आया है। कोई और ले लो भाई, ऐसे मत देखो। मॉड ऑफ 2x - 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8 मान लेते हैं ये, ठीक। अब मैं कह रहा हूं जब लेस देन और इक्वल टू आए तो आप ऐसे करो 2x - 7, इसको ब्रैकेट बना लो, खोलना है ना, ये तो है, ये खोलो, तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 कर दो, यानी इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -7 है, तो इसको आइसोलेट करने के लिए मैं +7 अगर इधर करूं तो +7 इधर करूं तो +7 इधर, कोई फर्क पड़ेगा? इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अपन ऐड और घटा जोड़ सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 15, ये बन जाएगा। लेकिन अपने को तो x चाहिए, I डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा। तो बनेगा -1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 15/2, ये मेरा आंसर है। यानी कि x लाइज बिटवीन हाफ एंड 15/2। चूंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए मैं क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूं, अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो मैं ओपन ब्रैकेट लगाता। ठीक है, मॉड्यूलस समझ में आया? सर नहीं? एक बारी कोई और क्वेश्चन लोगे जिसमें 2-3 वो थे एलिमेंट, जैसे x - 3 x + 2, और जो कौन पहले सा भी वाला? क्वेश्चन कराया था ना कैट का, हाँ, वैसे कोई एक और क्वेश्चन कराओगे? तुम बताओ कैसा अच्छा चाहिए, बोलो, मैं लिख लेता हूँ रैंडम क्वेश्चन। कोई सी भी वैल्यू ले लो सर। कोई भी मान लेते हैं, x + 7 मॉड x - ले लें, चलेगा या एक और लेना है? ये इजी जल्दी हो जाएगा बस। सर एक और ले लो। ठीक है, या एक और ले सकते हैं? ठीक है सर। क्रिटिकल पॉइंट देखो, -7 -4 +8, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ठीक है। यस सर। अगर 8 और 8 से बड़ा, अब हम राइट साइड में ले रहे हैं, जैसे वो कह रहा था ना, अगर मेरी वैल्यू यहां लाई करती है 8 या 8 से बड़ी, तो मैंने क्या माना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर, पॉजिटिव होगा ये। क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? यस सर। क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ सर, पॉजिटिव है ये भी। ठीक है, 3x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 12 होएगा, है? -3, हाँ सर +3, ठीक है। ठीक है, +3 आएगा। +3, ठीक है। तो 3x इज लेस देन और इक्वल टू 9 होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 9/3 होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। और हमने क्या माना था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और आया क्या? x लेस देन 3 आया, तो मिसमैच है। दिस इज नॉट माय आंसर। समझ में आ रहा है, यानी मेरा आंसर इसमें लाई नहीं करेगा। अगला मेरा आंसर होगा इसके बीच में। ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज लेंगे -4 से लेके 8 तक। 8 ले चुके हैं तो यहाँ एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। ठीक है। -4 से 8 ये पॉजिटिव होगा, यस सर। हाँ सर, पॉजिटिव होगा। बढ़ रहा है ना, -3 हाँ बढ़ आएगा रहा है। तो x प्लस, -3 आएगा तो बड़ा ही आएगा। हाँ, ये भी पॉजिटिव ही आएगा,
पॉजिटिव आएगा और वो नेगेटिव रहेगा। और ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो x + 4 + x + 7 - x + 8 इज लेस देन और इक्वल टू 12 प्लस x - x खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 इज इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 8 4 12 -7 ये आएगा। यस सर। हाँ सर। यही बन रहा है ना। 7 4 11 और 8 8 11 और 8 19 यहाँ आ जाएगा -19। हाँ माइनस आ जाएगा। तो ये भी माइनस सॉल्यूशन सर। ये भी सोल्यूशन नहीं। ठीक है, थर्ड वैल्यू जो थर्ड सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा -7 से लेके -4 के बीच तो दोनों ही एक्सक्लूड होंगे। -7 इंक्लूड कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू नेगेटिव बनेगी -x + 4। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव बने क्योंकि -4 इंक्लूडेड 7 इंक्लूड कर रखा है। हाँ सर। ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, -x - 4 + x + 7 -x + 8 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ये दोनों खत्म हो गया। ठीक है, -x ये बनेगा, इन दोनों का सम बनेगा +4 4 + 7 11 11 बनेगा सर और वहाँ एक आएगा x की हाँ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। ये बात ठीक है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब हमारी वैल्यू आ गई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 तो इधर है। हाँ ये भी सॉल्यूशन सेट के बाहर है। ये भी सॉल्यूशन सेट के बाहर है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे इधर आना पड़ेगा ये वाली वैल्यूज। हाँ -इन्फिनिटी और 7 लेना 7 पड़ेगा। 7 हाँ और 7 एक्सक्लूड होएगा। हाँ, तो अब -इन्फिनिटी टू -7 क्योंकि हम 7 ले चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, उस केस में पहले वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तीसरी तो है ही नेगेटिव। तीसरी वाली भी नेगेटिव हो जाएगी। -x - 4 -x - 7 -x + 8 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा -3x -11 + 8 या इसको कर लेते हैं +1 -3 -3 वहां जाके 15 हो जाएगा। ठीक है, -3 हाँ मान लेंगे 15। ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो -7 से -5 ये भी नहीं हो रहा। x की वैल्यू -5 से बड़ी है ना, और हमने -7 से छोड़ा तो यहाँ भी आंसर है। -7 से छोटी ली हुई है। इसका मतलब फॉर दिस पॉसिबल देयर इज नो सच पॉसिबल वैल्यू व्हिच विल सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी लेस देन 12। ठीक है सर। क्योंकि अब लॉजिकली सोचो, अगर अपन 8 ले लेते हैं तो इसको 0 करने के चक्कर में 15 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कम नहीं हो पा रहा है 12 से। यहाँ पे 20 25 30 लेता तो शायद आंसर आया था। लॉजिकली देखो ना, ये बड़ी वाली वैल्यूज हो रखी हैं, किसी को तो 0 करोगे मिनिमाइज करने के लिए। हाँ सर। तो बेस्ट पॉसिबल है 8। 8 डालते ही 7 8 तो 15 हो वो गया और 15 हो 12 जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्या डालोगे, -7 डालोगे तो ये 15 हो जाएगा। इसलिए नन ऑफ दिस। -15 उधर जाके जुड़ जाएगा। हाँ, या तो अपन यहाँ 20 22 ले लेते तो आ जाता कुछ ना कुछ आंसर। ठीक है सर। बोल। हाँ जी, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? There are certain results which you need to know. X + 1/x will always be greater than or equal to 0. X is all positive real number. It is only equal to 2 when x is equal to 1. तभी होता है x, a number, a positive real number plus its reciprocal will always be greater than or equal to 2. Now x plus वन प्लस 1/x होल की पावर x, समझ में आ रहा है, is always greater than 2 and less than 2.8. Of course, I think it can be equal to 2 अगर 1 पुट कर देंगे तो x plus 1/x होल की पावर x is always greater than or equal to 2 and less than 2.8.
ये रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्यों याद होना चाहिए? इसलिए याद होना चाहिए कि मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, 50 की पावर 51 बड़ा है या 51 की पावर 50 बड़ा है, मान लो ऐसा सा कुछ क्वेश्चन बन गया। इस टाइप से समझ में आ रही बात? कैसे करोगे इसको? लॉग लेके, हाँ लॉग लेके भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसको a मान लिया और इसको मान लिया b, ठीक है ना? ऐसा तो कुछ नहीं थी। इसको a मान लिया। अगर हम b बाई a की वैल्यू निकालें, b बाई a की वैल्यू बनेगी 51 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 50 की पावर 51। इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 50 बाहर निकाल के मैं लिख सकता हूं 51 अपॉन 50 होल की पावर 50, लिखा जा सकता है ऐसा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई 50 इंटू 1 प्लस 1 बाई 50 होल की पावर 50 कर सकता हूं मैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2, कम से कम 2 आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा? 2.8। अगर 2 भी आ जाए इसकी वैल्यू तो मेरा आंसर बनेगा 2 बाई 50, और अगर मैक्सिमम वैल्यू 2.8 भी आ जाए तो 2.8 बाई 50 यही बनेगा। यानी मेरी जो b बाई a की वैल्यू है वो इसी के बीच में आनी है, यानी b बाई, दोनों केसेस में कैन आई से दिस वैल्यू इज लेस देन 1, 2 बाई 50, यानी b बाई a इज लेस देन 1। इसका मतलब है b इज लेस देन a। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये क्वेश्चन आता है विच इज ग्रेटर, इसलिए प्रॉपर्टी है जो बताई है तुमको। ये कुछ भी हो सकता है, 20 की पावर 21 या 21 की पावर 20, ऐसा। वो तो छोटा है जिसकी पावर ज्यादा है, नहीं जिसकी पावर नहीं बड़ा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर एक्स विल लाई बिटवीन 2 एंड 2.8। देखो ये वैल्यू लिख दी मैंने, यहां तक समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू जो है वो या तो ये होगी या तो ये। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लेते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकालूं तो मैक्सिमम वैल्यू ये है। किसकी वैल्यू है? ये b बाई ए की वैल्यू है ना। b बाई ए हमने क्या निकाला? हमारी मैक्सिमम वैल्यू 2.8 बाई 50 आई है, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी इस, और जिस जो कि 1 से छोटी है, दिस इज लेस देन 1, देयरफॉर b बाई ए जो है वो लेस देन 1 है ना, क्योंकि ये 1 से छोटा है। अगर b बाई ए 1 से छोटा है इसका मतलब प्रॉपर कैसा है? फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से। Any value which is less than 1, any fraction less than 1 is an improper fraction. What does it mean? It means numerator is less than denominator. That's how it could be handled. हाँ जी सुगंध, आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सभी को? अब मैं आपको अगली प्रॉपर्टी समझाता हूं। For a given sum, product is maximum when the values are equal. मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास कुछ सम है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, मान लो फिक्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम तब होगा जब a इज इक्वल टू बी होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब, मान लेते हैं a प्लस बी 10 है, ये कैसे कैसे हो सकता है? 1 प्लस 9 हो सकता है मान लेते हैं, 2 प्लस 8 भी हो सकता है, 3 प्लस 7 भी हो सकता है, 4 प्लस 6 भी हो सकता है,
5 + 5 भी हो सकता है, फिर 6 + 4 आ जाएगा वापस, 7 + 3 आ जाएगा वापस, 8 + 2 आ जाएगा वापस, 9 + 1 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें 1 × 9 क्या बनता है 9, 2 × 8 कितना बनता है 16, 3 × 7 कितना बनता है 21, 4 × 6 कितना बनता है 24, 5 × 5 कितना बनता है 25, फिर 6 × 4 कितना बन जाएगा 24, फिर 21, फिर 16, फिर 9। What do you see? The values keep on increasing till they become equal and then once again start decreasing. What does it mean? It means for a given sum, the product is maximum when the values are equal. इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूसेज क्या है? इसका यूसेज ये, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि देयर इज अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज फिक्स्ड। एक ट्रायंगल बनाना है जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है। विच ट्रायंगल विल गिव यू मैक्सिमम एरिया? मान लो मैंने कहा एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है, यानी तीनों लंबाई का जोड़ 15 होना चाहिए। अब ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, कब होएगा? जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, व्हेन द वैल्यूज आर एज फार एज पॉसिबल इक्वल, तब होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है मान लो और तीनों इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या करोगे? और एक को डिफरेंट, आ रही है बात समझ में? और इंटीजर इस हिसाब से सेट करना है कि दो सेम करके एक को उसके मैक्सिमम पास रखना है, सिर्फ 1 कम करने की कोशिश करनी है। सो दैट इज द एरिया। फॉर एग्जांपल, फॉर अ गिवन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया? मतलब फॉर अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड की फिगर, इसका पेरीमीटर फिक्स है, किस फिगर का एरिया मैक्सिमम होगा? स्क्वायर का, क्योंकि वो मोर सिमेट्रिक फिगर है। तो जितनी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होती जाएंगी, वो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज होता जाएगा। अब इसके ऊपर सवाल बनते हैं, आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, फिर किताब का क्वेश्चन करूंगा। मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। R + h की जो वैल्यू है वो फिक्स है 6। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है अपने को। वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। पाई तो फिक्स है, यानी मुझे मैक्सिमम क्या करना है? r²h की वैल्यू मुझे मैक्सिमम करनी है। आ रही बात समझ में? बेसिकली मुझे r × h मैक्सिमम करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट। यानी ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी, यानी इसको दो लो, इसको दो लो, इसको दो लो, तभी बात बनेगी। क्यों? क्योंकि इनका r + h, रेडियस प्लस हाइट फिक्स है। तो रेडियस कितना लेना पड़ेगा मुझे? सर ये 3 + 3 नहीं होना चाहिए, कि R और + h 6 है ना? हाँ, मतलब रेडियस प्लस हाइट उसका फिक्स है। तो जो r है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो r को मैं 4 लूंगा, h को मैं 2 लूंगा, तभी ये वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। क्योंकि r का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देख, r का स्क्वायर करेंगे तो 16 × 2 बनेगा 32। तो अगर r को 3 ले लेगा तो 3 का स्क्वायर 9 और इसको 3 बनेगा 27। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? समझो आप बात को। जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बराबर रखना पड़ेगा ना, तब जाके मैक्सिमाइज होएगा। यानी जो r है उसको 2 हिस्सों में बांटना है और h को 1 हिस्से में बांटना है, बराबर होना चाहिए। बेसिक बात ही है। हाँ जी, बनी बात कुछ? हाँ, कोई 2 मिनट रुक जा, आ रहा हूं, बस 2 मिनट, एक क्वेश्चन दे देता हूं। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 30 और मुझे मैक्सिमाइज करना है x² y³। इसका मतलब ये है कि x को 2 हिस्सों में बांटना है और y को 3 हिस्सों में। लेकिन यहां पे जो कांस्टेंट है वो x और y नहीं है, 2x और 3y है।
तो इसका मतलब 2x को मुझे 2 पोर्शन में बांटना है और 3y को मुझे 3 पोर्शन में बांटना है और इसको इक्वेट करना है, यही बात है। तो इसका मतलब है बेसिकली x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई, तो मैं यहाँ पे x, तो ये बन जाएगा 5, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, x स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 3, आंसर बनेगा 6 की पावर 5। आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। चेक करो आपकी किताब में यही आंसर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? जनरलाइज रूल ये है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के है मान लेते हैं, और आपको x की पावर m y की पावर n को मैक्सिमाइज करना है। तो जो ax वाला पोर्शन है वो m हिस्सों में बटेगा और जो by वाला पोर्शन है वो n हिस्सों में बटेगा, उसको इक्वेट करना है, इक्वल करना है, उसके बाद x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फॉर ए गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। जैसे a इंटू बी 100 है मान लेते हैं, फॉर ए गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम। अब ये 1 इंटू 100 भी हो सकता था 100, ये 2 इंटू 50 भी हो सकता है, ये 4 इंटू 25 भी हो सकता है, ये 5 इंटू 20 भी हो सकता है, और फिर रिवर्स हो जाएगा 10 इंटू 10 भी हो सकता है, और फिर 10 के बाद ये 20 इंटू 5, समझ में आ रहा है, रिवर्स होता चला जाएगा। इसका सम देखो 101, इसका सम देखो 52, इसका सम देखो 29, इसका 25, इसका 20, और फिर इसके बाद 25, 29, 52, 101। क्या हो रहा है देखो, सम मिनिमाइज कब हो रहा है? व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। सो फॉर ए गिवन प्रोडक्ट सम इज मिनिमम व्हेन द वैल्यूज आर इक्वल। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है, आपको गिवन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 216, आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू। किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है? 32x प्लस वाई की। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 32x को सिंगल पोर्शन में डिवाइड करना है और y को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है, यानी 32x को 1 से डिवाइड करना है और y को 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 64x आ जाएगा। इसको अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 64x या x इज इक्वल टू y बाय 64 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा y अपॉन 64 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 216, तो y क्यूब की वैल्यू बनेगी 216 इंटू 64। 216 क्या होता है बाय द वे? ये तो 64 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6, ये बनेगा 6 का क्यूब, 6 क्यूब होती है सर, है ना, 6 का क्यूब यानी 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो इसका मतलब है y की जो वैल्यू बनेगी इसका क्यूब रूट बनेगा, तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा, यही बात है। तो y की वैल्यू बन जाएगी 4 दूनी 8 तिये 24, y की वैल्यू 24, तो यहाँ पे पुट करेंगे 24, तो x की वैल्यू बनेगी 24 अपॉन 64, यही बनेगा। तो 4 6 24, 4 इसमें जाएगा ना 16 में, और 2 3 में, 2 8 में, तो 3/8 आंसर आना चाहिए इसका। है x की वैल्यू 3/5, ठीक है।
तो ये मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, y की वैल्यू ये दोनों आ गई। इसको हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है 32 x और y में, तो 32 इंटू एक्स की वैल्यू बनेगी 3/8, y की वैल्यू बनेगी 24, 8 4 जा 32, यानी कि 12 प्लस 24 आंसर 36। जो काम हम पहले कह रहे थे, इसको 1 पोर्शन में डिवाइड करना है, इसको 2 इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x निकल गया, x को यहां पुट कर दिया, y क्यूब की वैल्यू 64 2 की पावर 16 आ गई, 64 को मैंने लिखा 2 की पावर 6, इसको लिखा 2 की पावर 6, इसको लिखा 6 क्यूब। अब क्यूब रूट निकालना है, y क्यूब की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, पावर 1/3, ये किया मैंने दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा y 2 की पावर 3/3, ये पता है ना प्रोडक्ट, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3/3 1, 2 की पावर 6/3 2, तो 4 3 जा 12 2 जा 24, ये आपका आंसर है। इस तरीके से ये समझ में नहीं, इसमें 2 रूल और बचे हुए हैं। अगली क्लास में इसमें कुछ बचेगा ही नहीं कराने के लिए। है ना, ऑनलाइन डाल दूंगा मैं, देख लेना बैकअप। बस एक बेसिक रिजल्ट है हमारा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन क्वेरीज ऑनलाइन? नो सर। भव्या, राहुल, ठीक है, इसमें 2-3 केसेस हैं और हैं, वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है, बट दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।